Hello students, in this lecture we will see Wood's reaction, that is another laboratory preparation methods of alkane. So let's see what is meant by a Wood's reaction. Now alkyl halide on treatment with sodium metal in presence of dry ether to give higher alkanes. Now let's see the example. Here 2 moles of alkyl halides on treatment with sodium metal in presence of dry ether to give higher alkane. So we have taken here is sodium metal and dry ether. Therefore, there should be a dry ether in the reaction because whenever there is a moisture, whatever the vessel or container that because of the moisture or because of the moisture it will burst or the reaction will get a exothermic reaction. Therefore the ether should be dry. Now let's see the mechanism of this reaction. Here 2 units of alkyl halides. Now we have to break this RX bond. Now we have taken here 2 moles of alkyl halide and we should have to take also 2 moles of sodium metal. Therefore we will replace this X with sodium metal. Therefore, what is the product? Here it is R plus 2Na plus 2NaX. Okay. Now let's see the mechanism. Here we have taken a sodium metal. Now this sodium metal loses a one electron. Therefore, we have seen here always what is the role of sodium metal. Always metals are इलेक्ट्रॉन डोनर्स. therefore वो डोनेट कब करेंगे जब वो लूज करेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन loses its one electron. Therefore in the next step we will see here we have taken a alkyl halide, that is this is a alkyl halide. Now on R there is a delta positive charge and on X there is a delta negative charge. Why it is a negative charge on X? Because this is a more electronegative than this carbon. Halogens are always more electronegative than carbon, therefore they will get a negative charge. So when this electron attacks on this positively charged partially positively charged carbon, then at the same time the halogen group will be replaced with 8 electrons. Therefore it will take out its electron and see here how many electrons belong with this X. It has a 8 electrons. Therefore it has a octet, complete octet. Now see here, before donating a electron, this R has a 6 electron, therefore it is a incomplete octet. Now while taking one electron, it have now R have a 7 electrons. Now this radical is a very unstable and it will react with another radical. Therefore we have taken here 2 unit. ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 रेडिकल बनेंगे. So and also you will see here it has a 6 electrons. Now while taking one electron it has a 7 electrons. Now it is a incomplete octet or it is a short of one electron to complete its octet. Now in the next step, see here in the next it has both the radical have a 7 electrons and both are incomplete of
octet. Now they will share their one electron. Here they will share their one electron and they will make a bond between them. Therefore, there is a formation of R and R. That is, alkanes are formed like this. So this is the mechanism. So for the examination purpose, you don't need to write a mechanism. Just you have to write this definition and the examples. Two examples we have to write. So let's see the examples. As I already uh, told you, in a general reaction, same thing we have to apply here. Now directly we will see how the products are forming. Leave the mechanism, so we don't need to write the mechanism in the examinations, but we have to understand what is going on in the reaction. Therefore, methyl bromide, methyl iodide on treatment with sodium metal in presence of dry ether to give a ethane, that is alkane. See here, we have taken 2 moles of methyl iodide. Now this bond will break here. तो यहाँ पे कितने हैं आयोडीन? 2 आयोडीन है. तो यहाँ पे हमें कितने लेने होंगे? 2 सोडियम मेटल. तो ये क्या होगा? -2 Na, -2 Na. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पे? ये CH3, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, दूसरा CH3, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा. सो क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे. इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे. आपस में इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करे तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अल्केन, दैट इज एथेन. 2 units of methyl iodide on treatment with sodium metal in presence of dry ether to give ethane as a product. Next example we will see here. Next example, 2 units of ethyl iodide on treatment with sodium metal. तो सेम 2 मोल लेने हैं हमें. सो यहाँ पे ऑलरेडी 2 सोडियम आयोडीन एटम्स है यहाँ पे. तो क्या होगा? 2 - 2 Na. तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये C2H5 ये रेडिकल बनेगा. देन यहाँ पे भी क्या होगा? ये C2H5 ये रेडिकल फॉर्म होगा. सो आपस में these species आर हाईली अनस्टेबल. देयरफॉर यहाँ पे भी ये 7 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे भी क्या होंगे? कार्बन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन. ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे. इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे. इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये आपस में कार्बन कार्बन में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा. सो ये बॉन्ड में कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. नाउ यहाँ पे इसका भी क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट क्या होगा? इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट होगा. देयरफॉर वी आर गेटिंग व्हाट हियर ethyl iodide on treatment with sodium metal in presence of dry ether to give butane as a product. Now next method we will see here, Kolbe electrolysis synthesis of alkane. यहाँ पे राइट नोट ऑन करके आएगा. 2 से 3 मार्क तक आएगा. एक तो आपको राइट नोट ऑन Wool's reaction and राइट नोट ऑन कोल्बे सिंथेसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स ऐसे करके आएगा. देन व्हाट इज द कोल्बे सिंथेसिस? सी हियर, इट इज द decarboxylative dimerization of 2 carboxylic acids salts. यहाँ पे देखिए डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है कुछ तो हमें रिमूव करना है. कार्बोक्सिलेट करना यानी कि क्या? -CO2 यहाँ से जाएगा. CO2 कहाँ से जाएगा? जब हमारे पास क्या होना चाहिए? एसिड्स होने चाहिए. सो यहाँ पे क्या हुआ है? डाइमराइजेशन हुआ है. डाइमराइजेशन करके जैसे आपने देखा इसमें यहाँ पे भी क्या हो रहा था? ये 2 यूनिट आपस में जुड़ रहे थे, 1 यूनिट और 1 यूनिट. तो ये भी क्या है? डाइमराइजेशन है. तो यहाँ पे ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस भी क्या है? ये डाइमराइजेशन इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस ऑफ अल्केन है.
तो डाई का मतलब होता है दो, मर का यानी मतलब होता है टू, यानी टू यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो इसे कहेंगे हम डाइमराइजेशन। लेट्स सी द एग्जांपल्स। Here we have taken it 2 units of carboxylic acids salt। यहाँ पे ये सोडियम मेटल होगा, इसके साथ में सोडियम मेटल, यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा लॉस होगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है एनोड में होती है, एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही है कि वहां पे क्या कैथोड एंड एनोड प्रेजेंट होंगे। सो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे ये एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा यहाँ पे एनोड पे सो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये होगा -1 इलेक्ट्रॉन एक कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो उससे क्या होगा यहाँ पे आई विल राइट हियर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ डॉट, यहाँ पे बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पे। देन उसके बाद में दिस रेडिकल इज अ हाईली हाईली अनस्टेबल, जैसे कि हमें वुड्स रिएक्शन में देखा है रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, दे आर शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देयरफॉर यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनेगा तो CO2 यहाँ पे इस रिएक्शन में जाएगा। सो उससे पहले क्या करना है हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्शन में सो ये एक रेडिकल ये आर की तरफ आएगा, दूसरा रेडिकल ये जाएगा ये कार्बन की तरफ जाएगा। सो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। देन उसके बाद में ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या है रेडिकल, ये कार्बन के ऊपर भी क्या बना है आपका रेडिकल, तो ये क्या बनेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सो यहाँ पे सो देयरफॉर ओवरऑल इट इज व्हाट CO2 एंड यहाँ पे क्या हुआ ये R डॉट एज इट इज रहेगा। सो हमारे पास कितने यूनिट है, से 2 यूनिट है, तो कितने यूनिट बनेंगे इसके 2 यूनिट बनेंगे। तो ये R एंड यहाँ पे R और एक आर डॉट होगा हमारा दूसरा आर डॉट। तो ये क्या करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इसमें क्या बनेगा दोनों में बॉन्ड बनेगा। therefore we can prepare here a alkanes। now नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये हम देखेंगे, सी द नेक्स्ट स्टेप दैट इज next step, see whatever the already I have explained you। now take the example, here a salt। नाउ देर इज ए लॉस ऑफ व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन एनोड पे होगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, निगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो दो में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा एक रेडिकल जनरेट होगा। सो रेडिकल जनरेट हुआ है तो दिस रेडिकल इज ए वेरी अनस्टेबल रेडिकल। देयरफॉर टू स्टेबलाइज दिस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा एक रेडिकल आएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी एक रेडिकल है तो ये आपस में क्या बनेंगे ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या होगा देर इज अ लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहाँ पे ऐसे हमारे पास कितने हैं 2 यूनिट्स है कार्बोक्सिलेट के, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स के। तो इसमें भी रेडिकल कितने बनेंगे 2 बनेंगे। एक यहाँ पे CH3 रेडिकल, एक यहाँ पे एक और एक CH3 रेडिकल। ये रेडिकल एंड रेडिकल क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर अगर हो रहा है तो क्या होगा आपस में ये बॉन्ड बनेगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट वी विल सी हियर, these 2 units dimerize to each other and there is a formation of a ethane। so this is all about a Kolbe synthesis of alkane। so आपको ये 2 से 3 मार्क तक आ सकता है, राइट टू नोट ऑन करके। खाली आपको क्या करना है ये डेफिनेशन एक सेंटेंस लिखना है एंड ये 2 आपको स्टेप्स लिखनी है। सो थैंक यू ऑल।